सो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? बेसिकली दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the rates of chemical reactions. Firstly, we will study about the rates of chemical reactions. Secondly, in this branch of chemistry, we study about the effect of different factors, effect of different factors on the rate of reaction. And thirdly, in this branch of chemistry, we study about the mechanisms of the chemical reactions. So this is the branch of chemistry, chemical kinetics is the branch of chemistry in which study about the rates of, बेटा आपने माइक्स म्यूट रखिए। सर हमें बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है। Okay, so chemical kinetics is the branch of chemistry in which we study about the rates of reaction. First of all, different reactions proceed at different rates. Some of them are slow, some of them are fast. So in this branch of chemistry, we study that why some of the reactions proceed slowly and why some of them proceed fastly. Rates of reactions क्या होते हैं, किस reaction का rate slow है, किसका fast है. Secondly, we discuss the effect of different factors on the rates of reactions. We will discuss that which of the factors will increase the rate of some chemical reaction and which of the factors will decrease the rate of chemical reaction. And thirdly, we discuss about the mechanisms of the chemical reaction. अब mechanism का मतलब ये होता है कि how actually a chemical reaction is taking place. जब हम ओवरऑल किसी रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें तो सिंपली लिखा होता है कि ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देते हैं। वो ओवरऑल रिएक्शन होता है कि इन रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। कैसे फॉर्म किया, दरमियान में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, किसने किस तरह से किसके ऊपर रिएक्ट किया, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस, तो वो सारी डिटेल्स how actually a chemical reaction takes place, उसको हम कहते हैं mechanism of the chemical reaction. And in this branch of chemistry, in chemical kinetics, firstly we study about the rates of the chemical reaction. Secondly, we study about the effect of different factors on the rates of chemical reactions. And thirdly, we study about the mechanisms of the chemical reactions, that how actually a chemical reaction is taking place. ये सारी डिस्कशन है जो हम इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में करते हैं। तो उसमें स्टार्ट हम करेंगे विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली हमने डिस्कस करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने से पहले हम अगर देखें कि किसी रिएक्शन में होता क्या है, जो हम पहले भी कुछ टॉपिक्स में पढ़ चुके, तो किसी भी रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इन द बिगिनिंग we start with the maximum concentration of the reactants. Start में reactants की concentration क्या होती है, maximum होती है, and with the passage of time as the reaction proceeds, those reactants react and they start converting into the products, and as those reactants will be converted into their products, the concentration of these reactants will keep on decreasing. जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, बट जब वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फिर क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली किसी टाइम पे जाके व्हेन ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट्स, देन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बिकम जीरो जाएगी। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी,
जीरो होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो उन प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। और फाइनली जब रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जीरो होगी तो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। सो जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर कोई रिएक्शन फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, तो रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट एट अ फास्टर रेट। और जब वो रिएक्टेंट्स फास्टर रेट पे रिएक्ट करेंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल डिक्रीज शार्पली। अगर रिएक्शन फास्ट होगा तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन क्या होगी, बहुत शार्पली डिक्रीज करेगी, बिकॉज दे विल रिएक्ट एट अ फास्टर रेट एंड दे विल रेडिली बी कन्वर्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट्स, राइट। अब सिमिलरली अगर रिएक्शन फास्ट है तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जब बहुत शार्पली डिक्रीज हो रही होगी तो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन उतनी शार्पली इंक्रीज भी हो रही होगी। और अगर इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो स्लो रिएक्शन में फिर क्या होगा कि इफ द रिएक्शन इज स्लो तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल डिक्रीज स्लोली और कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज फास्टली, सॉरी स्लोली। सो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बहुत शार्पली डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बहुत शार्पली इंक्रीज भी हो रही होगी, और ऐसे केस में फिर हम कहेंगे दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। और अगर किसी केस में, अगर किसी रिएक्शन में concentration of the reactants decreasing very slowly and the concentration of the products increasing very slowly, it means the reaction is slower, rate of reaction is slower। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जितना शार्पली डिक्रीज हो रही होगी और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जितना शार्पली इंक्रीज हो रही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा। और अगर किसी केस में, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जितना स्लोली डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जितना स्लोली इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट मच स्लोअर। रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जितना स्लोली डिक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लोअर होगा। प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जितना स्लोली इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लोअर होगा। एंड सिमिलरली रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जितना शार्पली, जितना फास्टली डिक्रीज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्टर होगा। और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जितना शार्पली या जितना फास्टली इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्टर होगा। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब रेट किसको कहते हैं? रेट होता है चेंज पर यूनिट टाइम। रेट होता है चेंज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चेंज होता है उसको हम रेट कहते हैं। तो फिर हम जब ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मींस द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रेट ऑफ डिक्रीज का मतलब क्या होगा? द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। या सिमिलरली जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ इंक्रीज, जब हम कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशंस हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हो रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रेट ऑफ डिक्रीज को आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, या फिर आप कह सकते हो इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो ये तो हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, उसको हमने डिफाइन कर लिया। और चूंकि ये चेंज इन कंसेंट्रेशन है, जब अच्छा चलें, जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग अलग करते हैं ना, तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। अगर हम इन दोनों को भी जनरलाइज कर लें तो हम कह सकते हैं चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड है, अगर वो रिएक्टेंट्स हैं तो उनकी कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, डिक्रीज होंगी, और अगर वो प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी। तो इसलिए आप जनरलाइज्ड फॉर्म में ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो फिर उसको हम लिख सकते हैं कि ये जो रेट होता है, रेट वो क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज पर यूनिट टाइम है ना, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स डिराइव करें तो कंसेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब, और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड्स, तो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, कि एक सेकंड में किसी रिएक्शन में, एक सेकंड में उसके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन में कितने मोल्स पर डीएम क्यूब का चेंज हुआ। अगर वो रिएक्टेंट है तो एक सेकंड में कितने मोल्स पर डीएम क्यूब उनकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, और अगर वो प्रोडक्ट्स हैं तो एक सेकंड में कितने मोल्स पर डीएम क्यूब उनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो यूनिट्स, अगर उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो दैट विल बी चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और उसके अगर हम यूनिट्स डिराइव करेंगे तो कंसेंट्रेशन का यूनिट है मोल्स पर डीएम क्यूब और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हो जाएंगे मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी टू टाइप्स हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को तो हमने डिफाइन कर लिया कि वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट। अब उसकी टाइप्स हैं, टू टाइप्स है रेट ऑफ रिएक्शन की। एक उसमें होते हैं हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, और सेकेंड टाइप इसकी हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is of two types, average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction को अगर हम पहले define करें, average rate of reaction, तो this is the rate of reaction over a period of time between two time intervals. The rate of a chemical reaction over a period of time between two time intervals, यानी किसी रिएक्शन का रेट जब आप दो टाइम इंटरवल्स के बीच में देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद 5 मिनट से लेके 10 मिनट्स के बीच में जो पीरियड ऑफ टाइम है इसमें उस रिएक्शन का रेट क्या था, 5 to 10 मिनट्स फॉर एग्जांपल, 10 to 20 मिनट्स, दो टाइम इंटरवल्स के बीच में 10 मिनट्स या 10 सेकंड टू 20 सेकंड्स के बीच में उस रिएक्शन का रेट क्या था। अच्छा, हम पहले भी ये पढ़ चुके, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हायर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लोअर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लोअर होगा। अब क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होती है। और जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसलिए हर टाइम पे, हर सेकंड पे
हर मोमेंट के साथ या इवन हर इंस्टेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, चेंज होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकंड में उसका रेट ज्यादा होगा, फास्टर होगा। सेकंड सेकंड के दौरान उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लोअर हो जाएगा। थर्ड सेकंड में और कम हो जाएगा, फोर्थ सेकंड में फर्दर स्लोअर हो जाएगा, फिफ्थ सेकंड में और स्लोअर हो जाएगा। तो जब हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड्स, 0 सेकंड टू 5 सेकंड्स, तो वो एक ही कांस्टेंट रेट तो नहीं था ना। फर्स्ट सेकंड में कुछ और था, सेकंड सेकंड में कुछ और था, थर्ड में कुछ और था, फोर्थ पे कुछ और था, फिफ्थ पे कुछ और था। तो जब हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो हमें उन सारे डिफरेंट रेट्स का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम कहते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स, अब 5th सेकंड से लेके 10th सेकंड तक रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो रहा होगा। 5th सेकंड के ऊपर वो ज्यादा होगा, 6th के ऊपर उससे कम हो जाएगा, 7th के ऊपर और कम हो जाएगा, 8th 10th 9th 10th, और तो हर सेकंड हर इंस्टेंट के ऊपर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब हम ओवरऑल कह देंगे रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 5th सेकंड टू 10th सेकंड, तो हमें बीच में वो जितने डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शंस होंगे उन सब का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कहेंगे, कि उन दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जितने टाइम इंस्टेंट्स हैं, हर इंस्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब हम उस पीरियड ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो हमें उन सारे डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शंस का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए उसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी टाइप इसकी हमने लिखी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम। The rate of a chemical reaction at a fixed instant of time is known as instantaneous rate of reaction. The rate of a chemical reaction at a fixed instant of time is known as instantaneous rate of reaction. और वो फिक्स्ड इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि सपोज हम कहें द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट 5 मिनट्स एंड 30th सेकंड, एग्जैक्टली एक फिक्स्ड इंस्टेंट के ऊपर, लाइक 5 मिनट्स एंड 30th सेकंड, एग्जैक्टली एट 5 मिनट्स एंड 30th सेकंड पे इस रिएक्शन का रेट ये था। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 10 मिनट्स एंड 15th सेकंड, right, rate of reaction at 15 minutes and 5th second exactly, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन की फिर टू टाइप्स होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, लाइक 5 सेकंड से 10 सेकंड्स तक इस रिएक्शन का रेट क्या था, 10 सेकंड से 15 सेकंड तक इस रिएक्शन का रेट क्या था, 15 से 20 तक क्या था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स। लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में हर इंस्टेंट के ऊपर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेंगे तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जितने डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन होंगे हमें उन सब का क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। इसलिए उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी तरफ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, लाइक रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट्स एंड 9th सेकंड, एग्जैक्टली 5 मिनट्स एंड 9th सेकंड। तो वहां एक ही कोई फिक्स्ड रेट होगा उस इंस्टेंट के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, उसकी टाइप्स हमने देख ली कि टाइप्स क्या क्या होती हैं, और उन दोनों टाइप्स को डिफाइन कर लिया। अब ये रेट्स, दोनों टाइप्स के जो रेट्स हैं, ये रेट्स ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, किसी रिएक्शन का ये रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि ये दोनों टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शंस हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों टाइप्स के रेट्स ऑफ रिएक्शंस हम कैलकुलेट करते कैसे? तो ये दोनों हम ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट जनरली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राफिकली करते हैं। और कैसे करते हैं कि हम उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को जिसको मेजर करना आसान हो। किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप मेजर कर लें, स्टार्ट में इतने थे, 5 सेकंड्स के बाद इतने हो गए, 10 के बाद इतने हो गए, 15 के बाद इतने हो गए। या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आप मेजर कर लो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्टार्ट में प्रोडक्ट्स इतने थे, 5 सेकंड्स के बाद इतने हो गए, 10 सेकंड्स के बाद इतने हो गए, 15 के बाद इतने हो गए। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को मेजर कर लें या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करें आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसको मेजर करना आसान हो। अच्छा, फिर उसमें कुछ रिएक्शंस में एक से ज्यादा 2-3 रिएक्टेंट्स होते हैं, तो सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने की जरूरत नहीं होती। किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने मेजर करना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगेन जिसको मेजर करना आसान है। सिमिलरली किसी रिएक्शन में 2-3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मेजर नहीं करना होता। किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपने रेगुलर इंटरवल्स के बाद मेजर करते जाना है, जिसको मेजर करना आसान हो। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, वो एक्सपेरिमेंटली करना होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। तो जिस किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करना आसान है, सिंपलर टेक्निक से किया जा सकता है, आप उस एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और फिर टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन एक ग्राफ प्लॉट करें आप, राइट? तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और उसका ग्राफ फिर प्लॉट करेंगे वर्सेस टाइम, टाइम प्लॉट करेंगे आप एक्स एक्सिस के ऊपर, कंसंट्रेशन आप प्लॉट करोगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर आप वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन करोगे तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली कहीं जाके वो जीरो हो जाएगी रिएक्टेंट्स के लिए। अब अगर आपने इधर, मैं इसके कुछ कर लेता हूं, 5 है, 10 है, 15 है, सपोज 20 है, 25 है, लेट्स से इधर भी हम कर लेते हैं 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40 फॉर एग्जाम्पल। तो आपने रिएक्टेंट की अगर करना है तो कंसंट्रेशन मेजर करनी है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और आपने कंसंट्रेशन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट कर लेना है। अब अगर आपने इस रिएक्शन का एवरेज रेट फाइंड करना है, तो एवरेज रेट जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो आपको 2 टाइम इंटरवल्स बताए जाएंगे कि इस टाइम से इस टाइम के दरमियान में आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड करें बिटवीन 10 to 20 सेकंड्स, ये अगर सेकंड्स है तो सपोज 10 to 20 सेकंड, 10th सेकंड से 20th सेकंड के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड करना है। तो पहले आप देखोगे जो इनिशियल टाइम इंटरवल है T1, उसको आप कहेंगे, यहां से लेके आपने फाइनल टाइम इंटरवल यहां तक आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? T1, एंड टाइम क्या होगा? T2। अब टाइम T1 के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है वो फाइंड करने के लिए आप इससे उस कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और यहां से आप इस तरफ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो आप देखो ये कोई समवट लाइक 22 फॉर एग्जांपल बनती है कंसंट्रेशन। टाइम T1 के ऊपर जो हमें कहा गया था 10th सेकंड के ऊपर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी थी? 22 थी। तो T1 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, लेट्स से हम उसको C1 कह देते हैं। टाइम T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? C1।
अब टाइम t2 पे कंसेंट्रेशन क्या है, उसी तरह से आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस कर्व के ऊपर, और फिर इधर से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लो। तो ये ऑलमोस्ट कोई अपेरेंटली क्या लगता है 14। टाइम t1 के ऊपर जो कंसेंट्रेशन थी दैट वाज c1 22। टाइम t2 के ऊपर जो कंसेंट्रेशन है c2 वो कितनी है 14 है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। आपकी बुक में उसने सी की जगह एक्स यूज किया हुआ और डेल्टा की जगह डी। डी स्मॉल चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा भी चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। तो यहां जो डेल्टा सी होगा आपका वो होगा C2 माइनस C1, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो यहां फाइनल कंसेंट्रेशन C2 कितनी थी 14, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी 22, तो ये कितना होगा -8। और डेल्टा T वो क्या होगा T2 माइनस T1। T2 आपका कितना था 20 माइनस T1 कितना है 10, तो ये हो गया 10। डेल्टा C इज -8, डेल्टा T इज 10। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा -8 ओवर 10 माइनस 0.8 मोल्स पर डीएम क्यूब। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन किससे फाइंड किया, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन से, एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्योंकि हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन से फाइंड किया ना, और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन क्या हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिक्रीज हो रही होती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ये शो करता है कि इस रिएक्शन में 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड्स के दरमियान में हर एक सेकंड में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन में 0.8 मोल्स पर डीएम क्यूब का डिक्रीज हुआ। नेगेटिव साइन विल शो द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जब भी आप रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करोगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में डिक्रीज हो रही होती है और नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, अब अगर हम यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन से फाइंड करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइक अपना ऑफ कर लो बच्चे। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो हमें इसी तरह से रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी होगी कि स्टार्ट में कितनी थी, 5 सेकंड्स के बाद सर हमारी क्लास है। बेटा बस क्लास एंड होने वाली है, मेरे ख्याल में कोई 3 to 4 मिनट्स रहते हैं। तो सर 46 हुए सर, देन वेट कर रहे हैं सर हमारा। जस्ट प्रोडक्ट्स वाली एग्जांपल आप मुझे रोके नहीं तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं। तो प्रोडक्ट से जब आप करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को रेगुलर इंटरवल्स के बाद मेजर करनी है, और फिर इसी तरह से टाइम वर्सेस कंसेंट्रेशन एक ग्राफ प्लॉट करना है। और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन क्या होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज होती है। तो अब आपको इस तरह की एक कर्व मिलेगी। उसी तरह से इधर आप लगा लेंगे, ऐसे कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये टाइम हो जाएगा सेकंड्स में। इधर कंसेंट्रेशन आप कर लें 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब अगेन यहां अगर आपको कहा जाए उसी तरह से कि 10 to 20 सेकंड्स के दरमियान में आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो आप यहां भी ऐसे ही करोगे। 10th मिनट ये आपका T1 है, इसके ऊपर आप देखोगे कि कंसेंट्रेशन कितनी बन रही है, ये तकरीबन कोई 8 बन रही है, ये दिस इज C1, 8, 9 जितने भी हो। फिर दूसरा T2 हमारा क्या है अब 20 सेकंड्स, और T2 के ऊपर कंसेंट्रेशन कितनी होगी उसके लिए यहां से ऐसे ही ग्राफ प्लॉट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से नोट कर लेंगे
ये मुझे कोई लग रहा है तकरीबन 18 ऑलमोस्ट। ये आपका C2 हो जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन एज यूजुअल क्या होगा, डेल्टा C ओवर डेल्टा T, और डेल्टा C क्या होता है C2 माइनस C1, डेल्टा T क्या होता है T2 माइनस T1। तो C2 इस केस में हमारा क्या है 18 और C1 कितना है 8, 18 माइनस 8 ओवर T2 कितना है 20 और T1 कितना है 10। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 8 10 ओवर 10 एंड दैट इज 1 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब साइन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आया। और पॉजिटिव क्यों आ रहा है, इसलिए कि अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से कैलकुलेट किया है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही होती है, तो पॉजिटिव साइन शोज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट से जब आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करोगे तो उसका साइन नेगेटिव आएगा, एंड दैट नेगेटिव साइन विल शो द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। और जब आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करोगे तो रेट ऑफ पॉजिटिव साइन आएगा, एंड दैट पॉजिटिव साइन शोज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम।